जाते तो आलम का महबूब यकाना है। जो जाते तो आलम का महबूब यकाना है। कल्प से दुले जिसने खुद पार लगाना है। कल्प से दुले जिसने खुद पार लगाना है। सदा का वो बाबा है। हसनैन बनाना है। सारा बाबा है। हसनैन बनाना है। और आओ तो सहारा फैलाए गुलता में। आओ तो सहारा क्योंकि ये नस्ल सलीमा की लजपाल घराना है। ये नस्ल सलीमा की लजपाल घराना है। खुद अपने महबूब की आमद है। सिर्फ हैदराबाद को नहीं सजाना, कराची सिंध को नहीं सजाना, पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सजाना है। महबूब की आमद है। दुनिया को सजाना है। सुभान अल्लाह कहना आपने वास्ते से पढ़ो दुनिया को सजाना है। मैंने इस वजह से शेर पढ़ा था वापसी आप आशिक रसूल बेटे बावाज़ बुलंद कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक दफा और कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महबूब की आमद है। दुनिया को सजाना है। मंगता तो तुम्हारा है। जैसा है नसीरा साइल तो तुम्हारा है। एक नहीं उन पे कुर्बान ज़माना है। का महबूब यगाना है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इतने जनाब मोहम्मद हाशिर कादरी साहब
جو اپنی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے سینوں کو منور فرما رہے تھے۔ جی دوران نعت تحریک لبیک پاکستان ضلع حیدرآباد کے سرپرست اعلیٰ اسیر ناموس رسالت استاد العلماء پیکر صبر و استقامت حضرت علامہ صوفی رضا محمد عباسی دامت برکاتہم عالیہ کنونشن میں تشریف لائے، ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت کے بعد ہمارے کلندر کی نگری سے سہون شریف سے مفتی عبدالستار قاسمی صاحب جو کہ تحریک لبیک کے ذمہ دار ہیں، وہ تشریف لائے، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور حضرت کے بعد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر محمد علی جان سرہندی ٹنڈو محمد خان سے قافلہ لے کر تشریف لائے، ہم انہیں بھی کنونشن کے اندر حیدرآباد ذمہ داران کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اب انشاءاللہ خطابات کا سلسلہ شروع ہوگا، اور ان قریب ہمارے قائدین بہت جلد اسٹیج کے اوپر جلوہ فرما ہونے والے ہیں، اور ہم بہت جلد ان کے خطابات سے مستفیض ہوں گے۔ تو سب سے پہلے میں تربیت کے لیے دعوت خطاب دے رہا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر محمد علی جان سرہندی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہم سب کی تربیت فرمائیں۔ حضرت علامہ پیر محمد علی جان سرہندی۔ اچھا، جب خطاب ہوں تو یہ جو جھنڈے بیچ میں ہیں ان کو نیچے کر لیا جائے، اور تاکہ وہ پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دیکھنے کے اندر مشکل نہ ہو۔ اور جب دوران خطاب نعرے لگیں، لبیک کے نعرے لگیں، تو پھر ہمیں جھنڈے لہرانے ہیں، پھر اس کی جو ہے محفل کا نظارہ ہی کچھ اور ہوگا۔ تو بیچ کے اندر ہم نے لپیٹ کے رکھنے ہیں، اور جب کوئی ایسی بات ہو ایمان افروز اور نعرے لگانے کا سلسلہ ہو تو پھر ہم نے اٹھا کر ان جھنڈوں کو لہرانا ہے اور پھر واپس نیچے کرنا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وكريمنا ومولانا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله
قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما مولاي صل وسلم دائما أبدا 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 على حبيبك خير الخلق كلهم. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو. تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو غلام ہیں وہ تو ویسے ہی نہیں گھبراتے. انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا. اللہ رب العزت نے ہمیں تعظیم بخشی اور ہمیں ایک شرف یہ بھی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہیں. کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہم بہترین امت پیدا کیے گئے ہیں اس لیے کہ نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ شرف بھی بخشا کہ ہم تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حصہ ہیں. کہ جو بھی ایک شخص تحریک کا حصہ ہے، جو آپ یہ جھنڈا اٹھا کے بیٹھے ہیں، یہ کس لیے بیٹھے ہیں؟ کہ کوئی یہاں پر کسی سیاستدان کا جھنڈا اٹھا کے بیٹھا ہے تو کوئی پارٹی کا جھنڈا اٹھا کے بیٹھا ہے. وہ کس غرض سے بیٹھا ہے؟ وہ اس غرض سے بیٹھا ہے کہ مجھے نوکری ملے گی، مجھے دنیا کی شہرت ملے گی، مجھے دنیا میں بڑا مقام ملے گا، مجھے دنیا میں بڑا مرتبہ ملے گا، میرا جو ہے گھر کی گھٹی بن جائے گی، گلی بن جائے گی، فلاں نالی بن جائے گی، فلاں کام ہو جائے گا. وہ اپنی صرف مقاصد کی خاطر پارٹی کا جھنڈا اٹھا کے بیٹھا ہے. اور آپ جو یہ تحریک کا جھنڈا اٹھا کر بیٹھے ہیں، بروز محشر وہ شفاعت کریں گے چن چن کر. بروز محشر وہ شفاعت کریں گے چن چن کر کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. کہ بہت ہو گیا جیے جیے کے نعرے لگانے والوں، بہت ہو گیا. ہم نے فلاں کا نعرہ لگایا، فلاں کا نعرہ لگایا. لوگوں نے ہمارے کو جب سے پاکستان آزاد ہوا تب سے حکمرانوں نے صرف اپنے نعرے لگوائے، اپنے نعرے لگوائے، پر کسی نے یہ نہیں کہا پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا.
रसूलुल्लाह। जो ये सबक था जिस पर मुल्क पाकिस्तान आजाद हुआ, वो सबक भुला दिया। लोगों ने अपने नारे लगवा कर कौम को अपना गुलाम बना दिया। पर हमारा जो दीन है वो गुलामी से आजाद करने का दीन है। हमारा जो दीन है वो गुलामी से आजाद करने वाला दीन है। जब हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुलाम थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उनको आजाद करवाया तो पता चला कि किसी की नारे लगाकर उसकी गुलामी से आजाद होना ये भी सुन्नत है। ये भी सुन्नत है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कि हम गुलामी से निकले। और हम जो गुलामी से निकले तो किसकी गुलामी में आए? आप किसके गुलाम हैं? किसके गुलाम हैं? हुजूर के गुलाम हैं। तो मतलब हम आजाद हुए ना। हम गैरों की गुलामी से आजाद हो गए। और जब हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आजाद हुए तो अजान दे रहे थे, पर अजान जब नहीं दी तो सूरज तुलू नहीं हुआ। यह है गुलामी का मजा कि गुलामी में वो मजा है, वो ताकत है, वो पावर है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमा रहा है वमन युतिइल्लाह व रसूल। जिस शख्स ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत की, अताअत का मतलब फरमाबरदारी, ताबेदारी, आसान लफ्जों में कहें कि गुलामी। जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत की फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, वो अजीम तर कामयाब हो गया। हम यहाँ पर जो जिंदगी में आते हैं ना, वो किस लिए आते हैं? कामयाब होने के लिए। कामयाब होने के लिए आते हैं। असल जो कामयाबी है वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिरात मुस्तकीम में है। असल कामयाबी वो है, यहाँ बच्चा पैदा होता है, फिर उसको पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद वो जब बड़ा होता है तो बोलता है अब मैं शादी करूं, अब मैं रोजगार करूं तो सेट हो जाऊंगा। फिर जब वो रोजगार करता है, शादी करता है, उसके बाद वो उसके बच्चे होते हैं, फिर कहता है कि मैं अब अपने बच्चों को पढ़ाऊं तब मैं सेट हो जाऊंगा। फिर उसके बच्चे बड़े होते हैं, फिर उनको कारोबार सेट करके देता है। कारोबार सेट करते 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 उसकी जिंदगी का आखिरी मरहला आ जाता है और उसको जब कब्र में उतारा जाता है तो एक बंदा सियाना बंदा जब उसको लहद में उतारते हैं तो एक शख्स कहता है कि इसका मुंह थोड़ा टेढ़ा कर दो। जब उसका मुंह टेढ़ा करते हैं तो जो ऊपर सियाना जो समझदार बंदा खड़ा होता है वो कहता है अब ये सेट है। सेट करते करते अपने आप को सेट करते 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 पूरी जिंदगी उसने अपनी सेटिंग में गुजार दी, पर आखिर जाके सेट कहां हुआ? सेट जाके कब्र में हुआ। जब कब्र में जाके सेट हुआ तो मुनकर नकीर सवाल करने आए मर रब्बुका,
तुम्हारा रब कौन है? उसने जवाब दिया, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर फरमायो मा दीनुका, तुम्हारा दीन कौन सा है? जब रब ताला का नाम लिया तो इम्तिहान खत्म हो जाना चाहिए ना। अल्लाह तबारक व तआला तौहीद बयान हो गई। फिर पूछा मा दीनुका, तुम्हारा दीन कौन सा है? फरमाया दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फिर इम्तिहान खत्म हो जाना चाहिए, पर नहीं, इम्तिहान जो है, फिर पूछा मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते थे दुनिया में? कब्र में फंसने के बाद तो हर कोई बोलेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल में हाजिर हूँ, पर दुनिया में क्या कहते थे? तो हमारे और आपके जैसे क्या कहेंगे? लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के रसूल में हाजिर हूँ। किस लिए हाजिर हूँ? सिर्फ ज़बानी हाजिर हूँ? नहीं, जान, माल, तन, मन, धन, सब कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए हाजिर है। अला ला ईमाना लिमन ला मोहब्बत अला, उसका ईमान ही नहीं जिसकी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं है। जब मैं बदीन में इलेक्शन में खड़ा हुआ तो जब फॉर्म भराया, उस टाइम आज से 2 साल पहले जब फॉर्म भराया तो लोगों ने कहा साईं ये तो तहरीक लब्बैक नई जमात सुनने में आई है, नई जमात है। तो मैंने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जमात नहीं है पर नारा पुराना है। फिर एक जगह हम पहुंचे, पहुंचने से पहले मुझे एक बंदे ने कहा जो कारकुन था, बोला हजरत ये यहाँ पर नहीं जाएं, ये जो है वो पीपुल्स पार्टी के लोग हैं। मैंने कहा दावत देना हमारा काम है, बरोज़े महशर हुज्जत न रह जाए कि हमने इनको दावत नहीं दी और इनको पता नहीं था। हम अपना फर्ज उतार दें कि हमने इनको दावत दी कि आप इस रास्ते पर आए, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नारा लगाएं और इस रास्ते पर आए। तो जब मैं वहां पर पहुंचा, मैंने पूछा आपका नाम क्या है? उसने बोला मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ। मैंने कहा माशाल्लाह, आपका नाम क्या है? तो उसने कहा ये मेरा भाई है, इसका नाम गुलाम मुर्तज़ा है। मैंने कहा माशाल्लाह, आपका नाम क्या है? उसने कहा ये मेरी बहना भाई है, इसका नाम गुलाम मोहम्मद है। मैंने कहा माशाल्लाह, कितने भाई हैं? गुलाम 8 भाई हैं और हम सबका जो नाम है, 8 का नाम जो है वो हमारे बड़ों ने गुलाम पे रखा है। कोई गुलाम मोहम्मद है, कोई गुलाम अहमद है, कोई गुलाम मुस्तफ़ा है, कोई गुलाम मुज्तबा है, कोई गुलाम मुर्तज़ा है, सब अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम हैं। तो वो जो कारकुन खड़ा था, मैंने कहा ये तो बचपन से ही गुलाम है, तुम कह रहे हो कि ये दूसरी पार्टी के? जब इन्होंने इनके वालिदैन ने पैदा किया तो इनका नाम ही गुलाम रख दिया। तो मैंने उनसे पूछा आप किसके गुलाम हो? बोला हम साईं मदीने वाले साईं के गुलाम हैं। मैंने पक्के गुलाम हो या कच्चे गुलाम हो? चाहिए साईं पक्के गुलाम हैं। वो एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले होते हैं ना हजरत,
وہ کتے جو مارتے ہیں محلے کے، پھر جو بھٹکتا ہوا کتا ہوتا ہے اس کو مار دیتے ہیں، زہر دے کے مار دیتے ہیں، پر جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اس کو نہیں مارتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا رکھوالا ہے، اس کے گلے میں پٹا ہے، یہ جو کتا ہے یہ عام کتا نہیں ہے، اس کا رکھوالا موجود ہے۔ تو ہم جو لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہمارے گلوں میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پٹا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تجھ سے در سے سگ سے ہے میری نسبت، میرے گلے میں بھی ہے پٹا تیرا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ میری اتنی اوقات نہیں کہ میں آپ کے در سے نسبت رکھوں، پر آپ کے در کا جو کتا ہے میری نسبت اس کتے سے ہے، اور میرے گلے میں جو ہے وہ آپ کی نسبت کا پٹا ہے۔ کس کے گلے میں پٹا ہے؟ کھل کے کوئی شرم والی بات نہیں ہے۔ جب دوسرے سیاسی نعرہ لگاتے ہیں تو لوگ جھومتے ہیں، کوئی بھی شخصیت کا نعرہ، کوئی بھی شخصیت کا وہ ترانہ چلاتے ہیں تو لوگ اس پر کارکن جھومتے ہیں، ہم بھی جھومے، آیا 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 ہی آیا، آیا ہی آیا، جوش کے ساتھ، کہ اسی نعرے کو سن کر انگریز بھی کانپتے ہیں، اسی نعرے کو سن کر انگریز کانپتے ہیں، یہود و نصارہ کانپتی ہے، کیونکہ ان کو صرف اسی نعرے سے تکلیف ہے۔ آپ تبلیغ کریں، آپ قرآن و سنت کی دعوت دیں، کچھ بھی کریں، انگریزوں کو تکلیف نہیں۔ انگریزوں کو تکلیف کس چیز سے ہے؟ انگریزوں کو تکلیف جو ہے وہ 3 چیزوں سے ہے۔ ایک سود سے، سود کا آپ نام لیں گے تو یہود و نصارہ کو تکلیف ہوگی۔ ہمارے تقریباً 40% لوگ سود میں گھرے ہوئے ہیں، خاص کر کاروباری طبقہ جو ہے وہ سود کے زمرے میں آ چکا ہے، بینکوں سے قرض لینا، قرض دینا، سود لینا، سود دینا، اس چکر میں آ گیا ہے، اور انگریز خوش ہوتا ہے کہ یہ ہماری جو قوم ہے، یہ جو مسلمان ہیں، یہ اسی سود میں مبتلا ہو جائیں۔ وہ ہمارے کبھی دوست نہیں ہیں، وہ ہمارے کھلم کھلا دشمن ہیں۔ ایک سود ہے، دوسرا جہاد۔ کیا ہے؟ جہاد۔ جہاد کا مطلب حق کے لیے اٹھنا، باطل کے لیے اٹھنا، یہ بھی جہاد ہے۔ تیسرا ختم نبوت۔ ان 3 چیزوں سے انگریزوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب ختم نبوت کا نعرہ لگتا ہے نا تو ایمان کا جذبہ مکمل ہوتا ہے، ایمان کا جذبہ مکمل ہوتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان جو ہے وہ یقین ہے۔ عقیدہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ ایمان عقیدہ ہے، ایمان یقین ہے۔ یقین کیا ہے؟ کہ آپ کے یہاں پر کوئی بندوق رکھے تو آپ سب کچھ دے دیں گے؟ دیں گے نہیں دیں گے؟
सब चीज लुटा देंगे, घर, जायदाद, माल, मिल्कियत, हर चीज देने के लिए तैयार हो जाएंगे कि मेरा सब कुछ ले लो, मेरी जान बख्श दो। पर अगर वो आपको ये कहे कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, तुम सिर्फ ये कहो कि मैं मुसलमान नहीं हूं, उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आगे आ जाएगी। अल्लाह और अल्लाह पर रसूल पर जो ईमान है वो सामने आ जाएगा और आप कहेंगे नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे एक गोली नहीं मारो, मुझे 3 मारो, फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने अपने नबी का कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अंग्रेजों ने देखा ये इनके अंदर कौन सा पावर है जो ये सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है, पर अपने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं, इस कलमे के ऊपर अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। अंग्रेजों ने देखा कि इनके दिल में रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। क्या है? रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नए ज़माना नया सुबह शाम पैदा कर, तेरा मकाम अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी को न बेच। अल्लामा इकबाल का जो यहाँ पे लफ्ज आता है ना, खुदी, जैसा उनका दूसरा शेर है, खुदी को कर बुलंद गुना, कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदी का मतलब क्या है? खुदी का मतलब ज़मीर है, कि ज़मीर को न बेच, खुदी को न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। कि आज तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो आप हिस्सा हैं और ये झंडा उठा रहे हैं बरोज़े महशर, इसकी अहमियत आपको पता चलेगी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 दरगाहों का गादी नशीन हूं। जब जेल में था, जमीन पर बैठे थे, तो हजरत एक शख्स ने कहा, हजरत आप तो गादी नशीन हैं, बाहर आपको चादर मिलती है, 2-2 तकिए मिलते हैं और बड़ी इज्जत अफजाई होती है, 8 किस्म के खाने होते हैं, और ये फर्श पे बैठे हैं, यहाँ पे सलाखों जो है उसमें से रोटी मिल रही है आपको, ये इज्जत है? तो उस टाइम मैं भी सोचता, हाँ फकीर सही कह रहा है, ये तो इज्जत नहीं है, इज्जत तो बाहर मिलती है। पर हम भी हजरत उमर फारूक की औलाद हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हक चार या अली या गौसे आजम दस्तगीर, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, ज़कात अच्छी, हज अच्छा, बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता जब तक न कटमरू में जानिबे पतहा की चौखट पर खुदा शाहिद है, कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। कि जब वहां पर फर्श पर बैठे थे तो उस टाइम मैंने उसको कहा कि बाहर जो हमें इज्जत मिलती है वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके में मिलती है। किस लिए इज्जत मिलती है?
लोग हमारे हाथ क्यों चूम रहे हैं, किस लिए चूम रहे हैं, हमारे अंदर क्या है? जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आका आपने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला हूं, बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला हूं, मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा हूं। हैरान है मेरे नाज पे शाहान जमाना, हैरान है मेरे नाज पे शाहान जमाना, कासा लिए दहलीज पैगंबर पे खड़ा हूं कि हम मदीने वाले साईं के गुलाम हैं। और अगर हम नामूसे रिसालत के लिए अगर हम जेल के फर्श पर बैठ गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। हजरत मीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया ना कि ये जो हमारी पगड़ियां हैं ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके में है, ये जो हमारी इज्जतें बची हुई हैं ये भी उनके सदके में बची हुई है। और अब आपको एक आखिरी बात बता के मैं अपनी जगह लूंगा कि हम कहते हैं कि हम आशिक रसूल हैं। हजरत आशिक रसूल, पर मेरे जो वालिद साहब थे वो कहते थे इश्क में बेईमानी है, इश्क में बेईमानी है। ये जो आशिक रसूल है ना, अल्लामा इकबाल ने इश्क का लफ्ज ही हटा दिया। बाबा साईं कहते थे कि इश्क में बेईमानी है, वफा में बेईमानी नहीं है। तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। हम कौन? खालिक, मालिक, रज़्ज़ाक़, रहीम, करीम रब कह रहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। फिर अपनी किस्मत खुद लिखते जाओ कि जब नहीं, सियासी बात है, सियासी बात। जब ये सियासतदान जेल में बंद हुए ज़ियाउल हक के दौर में, MRD तहरीक चली, उसमें सियासतदान जो थे वो जेलों में बंद हुए, यही कानून उन पर लागू हुआ। तो जब उनसे कहा गया कि लिख के दे दो, नहीं लिख के दे दो, भाई क्या लिख के दें कि तुम्हारा कोई ताल्लुक तहरीक लब्बैक से नहीं है। क्या है? ताल्लुक तहरीक लब्बैक से नहीं है। जब हमसे ये कहा गया तो जब लेटर आया तो नीचे लिखा था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसके ऊपर लिखा था आसिया बीबी। हजरत जब हम अंदर थे तो लेटर आया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, ऊपर लिखा था आसिया बीबी। वो तो आप जानते होंगे कि जिस बदबख्त ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की, गुस्ताखी की, उसके लिए ये लफ्ज लिखना शर्म का मकाम है, डूब मरने का मकाम है कि हमारा कौन सा ईमान है कि हम एक गुस्ताख के लिए ये लिखें जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। तो मैंने कहा कि तहरीक लब्बैक को तो एक तरफ करो, पहले ये जो ऊपर जो लिखा है, अगर मैं कहता हूं कि मेरा ताल्लुक नहीं है तो बरोज़े महशर में कौन सा मुंह दिखाऊंगा? यहां तो मैं छुटकारा मिल जाएगा, मैं कहूंगा मेरा ताल्लुक नहीं है, पर वहां पे क्या कहेंगे?
बरोज़ महशर क्या कहेंगे कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कौन सा मुंह लेके जाएंगे कि जब ये ज़िया के दौर में जब ये तहरीक पर वो जमात थी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जब उनको कहा गया ज़िया के दौर में जब सियासतदान सब अंदर जेल में गए तो बोला कि आप ला ताल्लुकी का इजहार करें, तो उन्होंने कहा नहीं, हम ला ताल्लुकी का इजहार नहीं कर सकते। तो पूछा किस लिए, तो उन्होंने कहा कि मेरा जो है वो भुट्टो से प्यार है, मेरा जो है वो भुट्टो से प्यार है, और हम जब कहते हैं कि हम आशिक़े रसूल हैं तो फिर सलाम तो उनको होना चाहिए जिनका भुट्टो से प्यार था, और हम आशिक़े रसूल हैं कि जब इश्क का जो है ना वो अपना एक मज़ा और एक पावर होती है। दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अस्त आबरूए माँ ज़िनाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अस्त। हमारे दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम है, और हमारी जो इज़्ज़तें हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेज ते वेही करे अठन अठन माण्हुनि जा जनाज़ा पढ़ाईंदा, पर याद रखो अल्लाह जो जलाल फरमाए थो इन वक्त में ऐ मुसलमानो रसूलुल्लाह जा आशिको वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन। जेकॾहिं तव्हां बुलंदी चाहियो था त इहे जनाज़ा ॾिसी करे, इहे शहादतूं ॾिसी करे, जेल ॾिसी करे तव्हां परेशान न थिजो। वक़्तु आयो त इंशाअल्लाह दुनिया त पंहिंजी जॻह ते, पर दुनिया जा जेके हलाइण वारा अमेरिका यूरोप बदमज़हबी बि ॾिसंदा त वाकई हिननि सबुर करे ॾेखारियो आहे, हिननि कुर्बानियूं ॾेई ॾेखारियो, हिननि जनाज़ा खया, हिननि शहादतूं ॾिठियूं, हिननि जनाज़ा पढ़िया, हिननि लाश पुलनि ते खया, हिननि अखियूं निकिरंदे ॾिठियूं, हिननि बाहूं टुटंदे ॾिठियूं। पर हाणे वक़्तु अची वियो आहे, हाणे इहे ई हुक्मरान हूंदा, हाणे पाकिस्तान हिननि जो आहे, पर सारी दुनिया हिननि। नालो मां नथो खणां। पाकिस्तान जे अंदर हिकिड़ो कारकुन जंहिंजो शहीद थींदो आहे न, रोड बंदि करे वेही रहंदो आहे। हिकिड़ो कारकुन जंहिंजो शहीद थींदो आहे रोड बंदि करे वेही रहंदो आहे। 70 साल जे अंदर जंहिं बि इलेक्शन थी आहे ऐं जंहिंसां धांधली थी आहे रोड बंदि करे वेही रहंदो आहे। अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी ऐं उन जा कारकुन तारीख़ लबैक या रसूल सां ताल्लुक़ रखण वारा इन्हनि सभिनी शयुनि खे कुर्बान करे, जॾहिं खाधा पे छपिया रसूलुल्लाह जी बैत बि पई थी त पंहिंजा वोट कुर्बान करे, शहादतूं कुर्बान करे ऐं रसूलुल्लाह जे मोहब्बत में मैदान ते निकिरी आया। दुनिया खे ॿुधायो असांखे वोट जी ज़रूरत न आहे, असांखे शहादतुनि जी परवाह न आहे। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी अमीरुल मुजाहिदीन इहो दस ॾिनो आहे त असां अल्लाह रसूल जे इश्क में आहियूं। वक़्तु ईंदो त ही जवान वरी अॻिते ईंदा। पर हिकिड़ो जुमिलो अमीरुल मुजाहिदीन जो कॾहिं विसरण वारो त कोन्हे न। उहो कहिड़ो आहे त जेके तव्हां चार दीवारी चादर ऐं चार दीवारी जी बेहुरमती कई, उहो हिसाब तव्हांखे ॾियणो पवंदो। ऐं जेके तव्हां गोलियूं हुयूं 12,000 गोलियूं तव्हांखे असांजे पाकिस्तान जे अंदर हिंदू रहण वारा, भील रहण वारा, असांजे पाकिस्तान जे अंदर गरीब में गरीब ज़ात रहण वारी, मुसलमाननि खां अलावा ॿियूं क़ौमूं रहण वारियूं, उन्हनि खे बि जेकॾहिं अॼु 3 गोलियूं लॻंदियूं, 4 गोलियूं लॻंदियूं त पूरी दुनिया एहतिजाज कंदी आहे। हे लबैक या रसूलुल्लाह तहरीक जिन जेकॾहिं नारो हयो आहे त गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। तव्हां अॼु पंहिंजे ज़ुबान सां
वाज़िफ़ करे ॿुधायो त वाक़ई इन नारे ते सचा आहियूं या न। जेकॾहिं तव्हां ऐं असां इन नारे ते अॼु बि सचा आहियूं त पोइ छो चुप करे वेठा आहियूं? हे वक़्तु अची वियो आहे, राति हिकु करणी आहे, ॾींहुं हिकु करणो आहे, अवाम खे गॾु करणो आहे। नफ़िल में सवाब आहे, तिलावत में सवाब आहे, तिलावत तूं वेंदे कर। नफ़िल तोखे पढ़णो आहे त उन नफ़िल जी जॻह ते दीन जी ख़िदमत कर, अवाम गॾु कर, माण्हू गॾु कर। ॿी का तोखे सूरत ई कोन्हे जो पाकिस्तान जे अंदरि तूं दीन ते अमल करी ऐं जीअरो रही सघीं। जेकॾहिं तूं पाकिस्तान जे अंदरि दीन ते अमल करे ऐं जीअरो रही सघीं थो त इहा ई हींअर सूरत रही आहे पाकिस्तान जे अंदरि जो तुंहिंजे हथ में अवामी ताक़त हुजे। दुख जी ॻाल्हि, उस्तादुल उलमा सुन्निन जो जे मथे जो ताज, वक़्त जो कामिल वली क़िबला मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, अज़मत सहाबा, जे हवाले सां जेका कराची में रैली कढी उन जे मुक़ाबले में हाणे छा पियो थिए, 20 सफ़र ते तव्हां ॾिसंदव। हालांकि असां सुन्निन त अञा पंहिंजी ताक़त जो इज़हार ई कोन कयो आहे। सुन्नी जेकॾहिं उथी बीहनि न सभई, जेके बि रैलियूं थियूं, असां को हैदराबाद ऐं कराची वारा त कोन विया आहियूं न। पाकिस्तान जा सुन्नी जॾहिं सभु उथी बीहंदा न, पोइ कंहिंजा बि कपिड़ा सुका न रहंदा, सभिनी जा कपिड़ा आला थींदा। भले काए सेवन शरी में जॾहिं असां तारीख़ रबीअ ते फारम भरायो त असांजो जेको तक हुयो उहो ऐं मुराद शाह जो CM जो साॻियो हुयो। चई मुलाक़ात कयो, मुंहिंजो इलेक्शन लॻी पई आहे, केतिरा मसरूफ़ आहियूं, इलेक्शन खां बाद मुलाक़ात कंदासीं, को मसइलो आहे। तकड़ी मुलाक़ात त उहो करे जंहिंखे नौकरियूं खपनि। असांखे त नौकरी मिलियल आहे न। तव्हां जेके बि वेठा हो उहो पुछाड़ी खां वठी करे हिन स्टेज ताईं हर हिक खे रसूलुल्लाह जे ग़ुलामी वारी नौकरी मिलियल आहे। अब कंहिं नौकरी जी ज़रूरत आहे? इन खां वधीक नौकरी आहे कोन। त असांखे न नौकरी वठणी हुई न दौलत वठणी हुई, त मुलाक़ात छा जी? मुलाक़ात त अच्छा पोइ धमकियूं मिलियूं ऐं हर कंहिंखे धमकियूं मिलियूं। पर यार छा थींदो? रब जो फरमायो आहे वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलऊन। ऐं यादि रखो तारीख़ रबड़ सां ताल्लुक़ रखण वारो जेसिताईं जीअर आहो तव्हांजूं धमकियूं बंदि कोन थींदव। जेसिताईं जीअर आहो। ऐं यादि रखो इहे धमकियूं हिन हुकूमत में न, तारीख़ रबड़ खे न, इहे धमकियूं हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां वठी करे, सहाबनि खां वठी करे, हज़रत बिलाल खां वठी करे हिक हिक हुज़ूर जे आशिक़ ते आहियूं। छा उन्हनि रसूलुल्लाह जी ग़ुलामी छॾे ॾिनी? आया हुकूमत वारो, सियासतदानो ऐलान थो कयां, मां मुंहिंजो रिकॉर्ड करे छॾियो त तहरीक लबैक जो को बि कारकुन कंहिं धमकी खां डिॼण वारो न आहे। तहरीक लबैक जो कारकुन पाकिस्तान में अमन जो मुतलाशी आहे। तहरीक लबैक जो कारकुन कंहिं धमकी खां डिॼण वारो कोन्हे। तहरीक लबैक जो कारकुन उनजी चाहत सिर्फ़ एतिरी आहे त पाकिस्तान में अमन ख़राब न थिए। तारीख़ लबैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान जो फौज सां एतिरो प्यार आहे ऐं एतिरो गहरो ताल्लुक़ आहे जो अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब कई मरतबा इहो ऐलान कयो आहे
تو کشمیر جے لئے اساں کے آدھو دیو تمہاں دی آدھو اساں ہوندا سی گولیوں اساں ڈائیدا سی شہادت اساں قبول کندا سی اساں کے رگو اجازت ملے فوجی کمانڈرن جی اجازت ملے تو تحریک لبیک وارا انہیں میدان میں اگتے اگتے ہوندا اچھا یار یہ تو فوج آ تحریک لبیک تو پہلے فوج ساں پیار تھی کرے پر پولیس نہیں ماں یہ گال بتایا تو فیض آباد جو دھرنوں ڈٹھو انہیں دھرنے کے اندر 12,000 گولیوں وسیوں انہیں 12,000 گولین ساں لبیک دا کارکن شہید تھیا انہیں شہادت بھی باوجود علامہ خاتم حسین رضوی امیر المجاہدین جو یہ اعلان ہوئے پولیس والوں کے ساتھ کوئی نہ لڑے انہیں کہاوتی کا امون کیر کندو آئی ماتما کے بین لیڈرن جا بیان ریکارڈ تھے لکھارے سکا دو جن پولیس والن سا ویہا جن پولیس والن جے متھاں گاڑی چاڑیو جن پولیس والن جے گولی ہوئیو ماں یہ بگالیوں مختصر کرے تمہاں کے اشارہ دیا چاہیا دو پاکستان کے اندر تحریک لبیک کا ودیگا پاکستان سا پیار کرنے وارو کیری کونے پاکستان کے اندر تحریک لبیک کا ودیگا فوج سا پیار کرنے والو کیری کونے کو پاکستان کے اندر تحریک لبیک نے ہکرے کرے کارکن کا ودیگا امن جو متلاشی کیری کونے انشاءاللہ باقی جے کہ اساں جے قائدن کے اساں جے اگوانن کے دلن میں ارادہ ہن تب سستائی تھیندی ٹیکس ختم تھیندا عوام کے سہولیات ملندی ہو اوے تو خدا تو جانے نا کترا اوے تو خدا تو جانے آخر میں ایکڑو مثال دیا چھو جو ماں تکیر کرنے جلے نہ آئے ہوا ماں زیارت جلے آئے ہوا اسان جو کراچی جو کرو مشہور عالم دین 4 دین کھاں اغوا تھے لو اسان جو تانے حیدرآباد ہوئی ونجنو کراچی میں انہیں جو ادارے ماں تھی واپسی اچھوں علامہ مفتی رسول بخش صاحب دامت برکاتم العالیہ سو یہ ظلم یہ ستم اہل سنت ساں ہمیشہ تھینا رہان سنی علماء سنی مشائق سنی عوام یہ دکھا سکھا کلے تے کھنی برداشت کرنے یہ وقت گزارے ہوا پاکستان میں امور خراب کرنا نہ دلو تو انہیں ایسا انہیں حوالے سا کراچی ویلو یا سی واپس آیا ہوں تو یہ پروگرام اسا اٹینڈ کیا رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرمائے تو فلا تہنو یعنی یہ صد و اشارو ہن وقت تمہاریا حضور جس زمانے میں صحابن دے اے صحابہ تمہاں 313 آئے پر غلا تہنو غلا تحزنو وانتم العالون تمہاں بلند ہو تمہاں سست نہ تجو تمہاں کم نہ کجو تمہاں ابو جہل کا نہ تجو تمہاں عتبہ کا نہ تجو تمہاں شیبہ کا نہ تجو کہ خوف نہ کجو یہ اج وقت جو اعلان اللہ جلال کی قرآن کی آیت اساں دلائے لبیک مارن دلائے تمام مجاہدین دلائے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 جنگ جو دلے تبل بگو بزدل ونی گھر لکیا مجاہد مرکندہ حلیا یہ لبیک آئے ہوا جنگ جو سہیں جنہیں تبل اگے زمانے میں جنہیں جنگ تھی نہیں نا تو گھنٹ وغیرہ وجہیں دا وہ جنہیں ڈجنا ہوں دا سے گھر ونی لکندہ آئیں جنہیں مجاہد ہوں دا نا ابو بکر عمر عثمان علی جیڑا سے مرکندہ حلندہ مرکندہ سمجھو دا نا سندھی میں کھلر انہیں کی چے بوا آئیں اردو میں مسکراتے ہوئے چلے تو ہے لبیک ہی زمانہ دی اندر جہاد جو اعلان ہو جنہیں جہاد جو اعلان علامہ رضوی کہے ہوا تو آئے مجاہدو اچھو لبیک میں شامل تھو تو بزدل ونی گھر بیٹھا
ऐं जेके मुजाहिद हुयो पहलवान हुयो उहे मुर्गंदा हलिया या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाणे जेकॾहिं तव्हां कंहिंखे दावत ॾियो न तारीख़ लबैक जी ऐं हू इहा ॻाल्हि करे यार असांजो मुआशिरो असांजो वॾेरो असांजो इलाइक़ो यार असांजी नौकिरी जो मसइलो त उनखे तव्हां ॿ लफ़्ज़ चई छॾियो छा जंग जो जॾहिं तबल वॻो बुज़दिल वञी घर लिकिया ऐं मुजाहिद मुर्गंदा हलिया मुजाहिद मुर्गंदा हलिया अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी जी तकरीर में ॿुधण जे लाइ रिज़वी जे जमात में शामिल थियण जे लाइ मुजाहिद ना किरदार तो कपे बुज़दिला न बुज़दिला वञी पंहिंजे घरनि जूं जेको आहे सो कमरा बंद करे अंदरि लिकी विया सेवन सॼी शाहिदा लॉकडाउन जे अंदरि सेवन जे मस्जिदुनि खे ताला हणी माण्हुनि निमाज़ूं पढ़ियूं ऐं असांजे मदरसे लाल शहबाज कलंदर जे अंदरि जेको 10 फुट जो मेन गेट आहे उहो खोले ऐं वॾो जेको मथियों स्पीकर आहे उहो खोले जुमो पढ़ियोसीं मूंखे मुंहिंजी जमायत चयो साईं पुलिस बि थी घुमे मेन रोड ते तव्हांजो मदरसो आहे गिरफ़्तार थींदो मां चयो मां हे जुबो पाए ई गिरफ़्तारी लाइ आयो आहियां या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। ज़्यादा मां जो टाइम नथो वठणु चाहियां साईं वारनि जो ख़बर न आहे छा प्रोग्राम आहे साईं वारनि जी महिरबानी जो मूंखे अव्हां जे साम्हूं एतिरो टाइम ॾिनऊं अल्लाह तबारक व तआला इन प्रोग्राम के कबूल फरमाए तारीख़ लबैक के रात ॾींहुं तरक़ी अता फरमाए आख़िर में साॻी शेर पढ़ी इजाज़त वठंदुसि जंग जो जॾहिं तबल वॻो जंग जो जॾहिं तबल वॻो बुज़दिल वञी घर लिकिया मुजाहिद मुर्तदा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। आप लोगों को नींद तो नहीं आ रही? तहरीक लब्बैक के कारकुनान को नींद तो नहीं आ रही? पीछे वालों ने हाथ नहीं उठाया। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह। जाग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। वाजिबुल एहतराम कारकुनाने तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि मैं भी ख़िताब के लिए तो हाज़िर नहीं हुआ, क़िबला कारी साहब ने मदू किया तो अपनी हाज़िरी लगवाने के लिए आ गया, क्योंकि मुझसे पहले बड़ी बड़ी शख्सियात बिलखुसूस शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना सूफ़ी रज़ा मोहम्मद अब्बासी दामद बरकातुहुल आलिया, पीर मोहम्मद अली जान सरहंदी साहब, क़िबला मुफ्ती साहब और हमारे सीनियर साथी अल्लामा मंसूर साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। लेकिन इन उलमा की सरपरस्ती में, इन शयूख़ की सरपरस्ती में मुख्तसर गुफ्तगू आपके सामने में रखूँगा। मेरा ज़ाती तजर्बा, जो मेरे दिल ने जिस चीज़ को समझा वो ये कि जब से तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान वजूद में आई, मैंने देखा कि जो नौजवान कल तक अपनी ज़बानों पर गाने गुनगुनाते थे, आज वो लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। अगर मुझसे कोई पूछता है कि तहरीक लब्बैक आपको क्या दे रही है और क्या देगी, मैं यही कहता हूँ कि तहरीक लब्बैक दुनिया की कोई चीज़ न दे, लेकिन मेरे दीन की, मेरे ईमान की, नामूस रिसालत की और ख़त्म नबूवत की हिफाजत करने का तो बताती है ना। अल्हम्दुलिल्लाह आप ये नौजवान देखें, इनके अंदर बुजुर्ग मेरे ख्याल से बहुत कम मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मजमा जवानों से भरा है, और जवान भी ऐसे कि जब सदा लगे लब्बैक या रसूल अल्लाह की, लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक
خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے لگتا ہے ہمارے قائدین بھی تشریف لا چکے ہیں اور آپ نے استقبال ایسا کرنا ہے کہ انہیں پتہ چل جائے. آپ نے کھڑے نہیں ہونا, آپ بیٹھے رہیں, تمام حضرات بیٹھے رہیں. جب قائدین یہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ ہم نے بھرپور استقبال کرنا ہے. آخری بات, اگر ہم بقا چاہتے ہیں اپنے ملک پاکستان کی, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے 20,000 کم و بیش لوگوں کی قربانیاں دے کر جس مقصد کے لیے اس ملک پاکستان کو حاصل کیا تھا, اس مقصد کے لیے اس پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ لائیں گے. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پاکستان کے یہ نوجوان لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا اعلان کریں گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, لبیک لبیک یا رسول لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تمام حضرات بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں. تو ہے اب کسی کو الاؤ تھوڑی ہے, کسی کو آنے نہیں دینا. تمام ذمہ داران کارکنان تشریف رکھیں. اب کوئی بھی کھڑا نہ رہے, سائیڈوں پر جو کھڑے ہوئے ہیں سب بیٹھ جائیں پنڈال میں. الحمدللہ ہماری خوش قسمتی کہ اس وقت ہم تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی قائدین کی زیارت کر رہے ہیں, اور میں ضلع حیدرآباد کے خادم کی حیثیت سے سرپرست اعلیٰ قاضی محمود اعوان صاحب, مرکزی نائب امیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب, مرکزی نائب ناظم اعلیٰ جگر گوشہ امیر المجاہدین, یا رسول اللہ
हाफिज़ साद रिजवी साहब दामद बरकातुहुम आलिया, अमीर सिंध हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम गौस बगदादी दामद बरकातुहुम आलिया, नाज़िम आला सिंध मोहतरम जनाब सूफ़ी यहया कादरी साहब और दीगर कायदीन और जो ज़िम्मेदारान तशरीफ़ लाए हैं, मैं हैदराबाद की पूरी बॉडी की तरफ से तमाम ज़िम्मेदारान और कारकुनान की तरफ से दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और हम इनके शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त अता फरमाया और हैदराबाद तशरीफ़ लाए। जिस तरह से अमीरुल मुजाहिदीन के कदम जब सरज़मीन हैदराबाद को लगे तो तहरीक लब्बैक का काम बढ़ता चला गया और अब ये बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए हैं तो इंशाअल्लाह मज़ीद बरकत हो जाएगी। और मैं ये बताता चलूँ कि ये कोई जलसा आम नहीं है, क्योंकि तहरीक लब्बैक को अब जलसा करने के लिए हैदराबाद के सबसे बड़े ग्राउंड की ज़रूरत है। ये सिर्फ यहाँ पर ज़िम्मेदारान और कारकुनान जमा हैं जो कि तरबियती कन्वेंशन में शिरकत के लिए आए हैं। अवामुन्नास का ये जलसा नहीं है, ना ही इसकी कोई तशहीर की गई है, कोई पोस्टर लगाया गया है। सिर्फ ज़िम्मेदारान आए हैं, कारकुनान आए हैं, और जो अगर कोई मोहब्बत करने वाला भी आया हो तो हम उसको भी खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं ज़िला हैदराबाद के सरपरस्त आला, असीर नामूस रिसालत, उस्ताजुल उलमा, पेकर सब्र इस्तिकामत हज़रत अल्लामा सूफ़ी रज़ा मोहम्मद अब्बासी दामद बरकातुहुम आलिया से गुजारिश करूँगा कि वो हमारे मरकज़ी कायदीन को अजरक का तोहफ़ा अता फरमाएँ। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी मालियात सेक्रेटरी मेहर अली साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, हम उनको भी कन्वेंशन में खुश आमदीद कहते हैं। हैदराबाद की कारकर्दगी के हवाले से मैं अपने कायदीन की बारगाह में गुजारिश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ज़िलाई बॉडी भी मौजूद है हैदराबाद की, और हैदराबाद में 3 PS बॉडीज़ भी मुकम्मल हैं। PS 62 कासमाबाद, PS 66 और PS 67 ये हैदराबाद के 2 PS हैं सिटी के, इनकी भी बॉडीज़ मुकम्मल हैं। ये PS बॉडीज़ हैं। फिर इनके अंदर कासमाबाद के अंदर तकरीबन 5 UCs कंप्लीट हो चुकी हैं, और PS 66 के अंदर तकरीबन 12 UCs कंप्लीट हो चुकी हैं, और PS 67 के अंदर तकरीबन 18 UCs कंप्लीट हो चुकी हैं। और फिर UCs के बाद आगे वार्ड्स वगैरह भी बनाने का सिलसिला है, वार्ड्स पर भी बॉडीज़ बनाई जा रही हैं। तो और अमीरुल मुजाहिदीन के कदमों की बरकत से बहुत स्पीड के साथ हैदराबाद के अंदर तहरीक लब्बैक का काम बढ़ता जा रहा है, और इंशाअल्लाह आप लोगों के कदम लगे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि और मज़ीद इसके अंदर बरकत हो जाएगी। हैदराबाद आशिकान रसूल का शहर है, हैदराबाद तहरीक लब्बैक वालों का शहर है, हैदराबाद हुजूर से वफ़ा करने वालों का शहर है। तो हम लोग
बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी हमारी भरपूर तैयारी है और इंशाअल्लाह मरकज़ देखेगा कि हैदराबाद के अंदर तहरीक लब्बैक का कितना शानदार रिज़ल्ट आता है। और हमें अपनी कोताहियों पर भी हमारी नज़र है, कमज़ोरियों पर भी आप दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला मज़ीद हिम्मत और हौसला अता फरमाए, मज़ीद हमारी गैब से मदद फरमाए और मददगार पैदा फरमाए। तो जो कमियां और कोताहियां हैं उन पर भी हमारी नज़र है, इंशाअल्लाह हम उनको बहुत जल्द दूर कर लेंगे। और इसी के साथ मैं अपने ज़िला हैदराबाद के सरपरस्त आला उस्ताजुल उलमा असीर नामूस रिसालत हज़रत अल्लामा सूफ़ी रज़ा मोहम्मद अब्बासी दामत बरकातहुम आलिया से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ।